بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان، اور ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ آپ کو کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ چاہتا ہو میں ناکام ہو جاؤں۔ سب کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ جتنی محنت ہو رہی ہے یہ کامیاب ہونے کی ہو رہی ہے، ناکامی سے بچنے کی ہو رہی ہے۔ لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی انسان ہیں، یا کامیاب یا ناکام۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، آئے ہیں، آئیں گے، موجود ہیں، چلے گئے، یا کامیاب یا ناکام۔ تو کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا بندے سے، یہ بندے کی کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے یہ کامیاب ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے یہ ناکام ہے۔ اللہ جس سے راضی ہیں یہ کامیاب ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ہے، اللہ کا راضی ہو جانا۔ ہاں، جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے نا، 3 بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے۔ اس میں سے ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا رہے ہیں، یہ بات اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، دودھ پلا رہی تھی۔ ایک بادشاہ گزرا اور شاہی سواری، لوگ آگے پیچھے، حشم و خدم کے ساتھ۔ تو ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے دودھ چھوڑا اور اس بادشاہ کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے اور گھسیٹ رہے تھے، جوتے مار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ تو ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنائیو۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے، میں نے اس کے لیے شرافت مانگی، یہ انکار کیا، اور یہ ذلیل عورت اور کہتا ہے مجھے اس جیسا بنا، یہ کیا بات ہے؟ تو بچہ پھر بولا کہ ماں وہ پہلا جو آدمی گزرا تھا نا، دنیا میں بڑا نام ہے، بڑی شہرت، بڑی واہ واہ ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائے۔ یہ دوسری عورت جو گزری تھی نا، یہ تو لوگوں نے اس پر بہتان باندھا ہے، یہ تو نیک عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، یہ تو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیے۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا راضی ہو جانا۔ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ناراض ہو جانا۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے آپ کامیاب ہو، اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ ناکام ہو۔ آپ ایک لکھو نا، ایک لکھو، اس کے بعد لگاؤ 0، کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا 0 100، تیسرا 0 1000، چوتھا 0 10,000، پانچواں 0 1,00,000، صفریں بڑھائی جاؤ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، بنائی جاؤ صفریں۔ اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو، ایک ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟
सिफर 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 सिफर। आप लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, अरब कमाओ, 1 प्लाट 10 प्लाट, 1 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री, 1 डिग्री 10 डिग्री, 1 ओहदा, सारी दुनिया के बादशाह बनो, अगर अल्लाह आपसे नाराज है आप क्या हो? सिफर 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 सिफर। आप टके के भी नहीं हो। हाँ, तो इसलिए हमारे भाइयों सब नियत करो अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह। अच्छा, अब अल्लाह की रजा की अलामत क्या है और अल्लाह की नाराजगी की अलामत क्या है? ये पंखे चल रहे हैं, ये अलामत है कि मौसम कौन सा है? गर्मी का है। और हीटर चल रहे हो तो ये अलामत है कि मौसम कौन सा है? सर्दी का है। एक आदमी साइकिल पर आ रहा है, ये अलामत है कि आदमी गरीब है। एक आदमी गाड़ी पर आ रहा है, ये अलामत है कि फिर गाड़ी की भी 10 लाख की भी है, 1 करोड़ की भी है, 4 करोड़ की भी है। उसके हिसाब से लोग अंदाजा लगाते हैं ना, उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं ना कि बंदा गरीब है कि मालदार है। एक आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसका मतलब है तंदुरुस्त है। एक आदमी सहारे से उसको लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है ये आदमी क्या है? कमजोर है, बीमार है। अल्लाह की रजा की अलामत क्या है? अल्लाह की नाराजगी की अलामत क्या है? अल्लाह जिससे राजी होते हैं अल्लाह उसे आमाल का शौक देते हैं, अल्लाह उसे आमाल की तौफीक देते हैं, अल्लाह उसे आमाल का उसके अंदर जज्बा पैदा करते हैं, आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना। और जब अल्लाह किसी से नाराज होते हैं अल्लाह उससे आमाल की तौफीक छीन लेते हैं। एक आदमी को नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को नमाज छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को तरावी पढ़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को तरावी छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को रोजा रखना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को रोजा छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी का साल में भी कुरान खत्म नहीं होता और एक आदमी का हर रोज कुरान खत्म होता है। एक आदमी का मस्जिद में आना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को मस्जिद से निकलना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को यह बात सुनना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी का ज़हन है कि यह बात खत्म ही ना हो। हाँ, अब हम सब अंदाजा लगाएं हमारे अंदर आमाल का शौक कितना है, नमाज का कितना शौक है। अल्लाह के नबी ने माल का शौक पैदा नहीं किया, आमाल का शौक पैदा किया। पहली सब में नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया, तकबीर उला से नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया, मस्जिद में जाने का शौक पैदा किया, जमात से नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया और आजान देने का शौक पैदा किया। फरमाया अगर तुम्हें पता लग जाए आजान देने पर क्या मिलता है तो क्या होगा? कुरानदाजी करनी पड़ेगी। सब में शौक आ जाए मुझे आजान देनी है। हाँ, अगर तुम्हें पता लग जाए पहली सब में नमाज पढ़ने पर क्या मिलता है, कुरानदाजी करनी पड़े कि मुझे पहली सब में नमाज पढ़ना है। शौक पैदा किया है आमाल का। सहाबा मस्जिद की तरफ आते थे ना, कदम छोटे छोटे उठाते थे, नेकियां ज्यादा हो जाएं, नेकियों का शौक। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मेरा घर मस्जिद से दूर है, मुझे इजाजत दें मैं घर मस्जिद के करीब बना लूं। और मैं नहीं 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 नहीं, जितना तुम दूर से आओगे हर कदम पे तुम्हें नेकी मिलेगी। अमल का शौक पैदा किया। अमल से जिंदगी बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम में से रोजा किसने रखा? रोजा, रमजान का रोजा तो फर्ज है, ये तो रमजान के अलावा बात हो रही थी, रमजान के अलावा पूछा आपने। आज तुम में से रोजा किसने रखा है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, हुजूर मैंने रोजा रखा है। दूसरी बात फरमाई आज तुम में से किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है? हजरत अबू बकर खड़े हो गए, हुजूर मैं एक मिस्कीन को खाना भी खिला के आ रहा हूं। तीसरी बात फरमाई आज तुम में से किसी बीमार की इयादत किसने की है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए, हुजूर एक बीमार की इयादत भी करके आया हूं। चौथी बात फरमाई आज तुम में से किसी जनाजे में शिरकत किसने की है? हजरत अबू बकर फिर खड़े हो गए, हुजूर एक जनाजे में शिरकत भी करके आया हूं। आपने फरमाया जिस आदमी में ये अमाल जमा हो जाएंगे वो सीधा जन्नत में जाएगा। अमाल का शौक पैदा किया। साहबा का शौक माल का नहीं था, कपड़ों का नहीं था, बर्तनों का नहीं था, जेवर का नहीं था, टाइल पत्थर का नहीं था, चीजों का नहीं था। साहबा का शौक अमल का था, अमल का था, अमल का था। अमल में एक दूसरे से आगे बढ़े,
अमल में। इसलिए एक अजीब मुकदमा आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, गरीब साहबा इकट्ठे हुए, गरीब साहबा इकट्ठे हुए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक मुकदमा लेकर। क्या कि हुजूर ये मालदार भाई हमसे आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। वो कैसे? हम नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं बराबर बराबर, हम रोजा रखते हैं, वो रोजा रखते हैं बराबर बराबर, हाँ, लेकिन इनके पास माल है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये गुलाम आजाद करते हैं, ये सदके करते हैं। हमारे पास माल कोई नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं कर सकते। माल खर्च करने के अमल में ये हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। ये परेशानी थी। आज क्या परेशानी है? मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मेरा मकान छोटा है, मेरे पैसे थोड़े हैं। साहबा को परेशानी क्या थी? अमल में पीछे रह गए। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं जो उस अमल को करेगा उससे आगे कोई निकल ही ना सकेगा, इतना सवाब और अजर कमाएगा उसके बराबर कोई पहुंच नहीं सकेगा, इल्ला ये कि वो भी कर ले। क्या? फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जो ये तस्बीह पढ़ेगा उसको इतना अजर मिलेगा कि इसके बराबर कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब गरीब साहबा बड़े खुश हो गए, वाह वाह, ऐसा अमल मिल गया, हमारे बराबर कोई पहुंच नहीं सकता। अब फजर नमाज पढ़ी मस्जिद में और बैठ के तस्बीह शुरू कर दी। अब उस जमाने के जो मालदार थे उन्हें भी शौक किसका था? अमल का। उनकी भी हिर्स अमल की, उन्हें पता लग गया इस मामले का, तो वो भी बैठ गए, उन्होंने भी तस्बीह शुरू कर दी। तो गरीब साहबा दोबारा इकट्ठे हुए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो तो मालदार भाइयों को पता लग गया उस तस्बीह का, वो तस्बीह तो उन्होंने भी शुरू कर दी, वो तो फिर हमसे आगे निकल गए। उस पर आपने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये तो फिर अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाते। मेरे भाइयों, आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़े हैं। आमाल में, आमाल से दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। तो सब नियत करो भाई अपने अमाल को अच्छा बनाना है इंशाअल्लाह। अपनी नमाज का एहतमाम, रमज़ान है, रोज़ों का एहतमाम, तरावी का एहतमाम। कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है, सारी सारी रात जागते हैं, तरावी नहीं पढ़ते। मस्जिद के बाहर बैठे हैं, तरावी नहीं पढ़ते। एक सजदे पर 1500 नेकी मिलेगी, तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकी मिलेगी। एक सजदे पर जन्नत में महल तैयार होगा। 20 तरावी पढ़ेगा 60,000 नेकियां मिलेंगी। और वो वक्त कहां गुजार दिया? बाहर चारपाई पे बैठे हैं। तरावी पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें। रमजान आखिरी अशरा, कम से कम 3 सिपारे रोज, कम से कम। आप सब देखो, आप 3 सिपारे पढ़ते हो, कम से कम 1 सिपारा पढ़ते हो। रमजान खत्म होने को है, आपने कितने कुरान खत्म किए? कुरान का शौक हो, जिक्र का शौक हो। आपने फरमाया रमजान में 4 चीजों की कसरत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कसरत से पढ़ो, 100 दफा नहीं कहा, 200 दफा नहीं, कसरत से पढ़ो। और हदीस में आता है जो रोजाना 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। दूसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस्तिग़फ़ार किससे किया? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और छोटा सा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। और तुम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते? इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह की रहमतें बरसेंगी तुम्हारे पर। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। कैसी अजीब बात है। अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं इन पर अजाब नहीं आएगा। और अगर आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे इन पर अजाब नहीं आएगा। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। तीसरी चीज, अल्लाह से जन्नत मांगे। चौथी चीज, जहन्नम से पनाह मांगे। तो मेरे भाइयों, आमाल का एहतमाम,
आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़े। ये आमाल का महीना है, ये आमाल का अशरा है, नमाज है, कुरान है, जिक्र है, दुआ है, तहज्जुद पढ़े। तो सब नियत करो भाई आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह भाई? इसको अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमें आमाल की तौफीक अता फरमा, आमाल की तौफीक अता फरमा। आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, नियत करें आमाल से, आमाल का एहतमाम करना है, दुआ मांगे अल्लाह आमाल की तौफीक दे दे। कोशिश करें आमाल में आगे बढ़ने की। तबलीग क्या है? ये बात लोगों को समझाओ, ये बात लोगों को समझाओ। अपने घरों को आमाल से आबाद करो, अपनी ज़िंदगी में आमाल लेकर आओ। आमाल से दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनाएगी। अपना निज़ामुल औकात बनाएं, सब तय करें। मुझे इतना रोज़ाना कुरान पढ़ना है, इतना मुझे जिक्र करना है, इतनी देर मुझे दुआ मांगनी है, ये वक्त मेरा घर का है, ये वक्त मेरा मस्जिद का है, ये वक्त मेरा कुरान का है, ये वक्त मेरा जिक्र का है, ये वक्त मेरा दीन तालीम का है। तय करें कुछ भाई। ऐसे बैठे सो रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, सारी रात जाकर 2 रकत नफिल तहज्जुद नहीं पढ़ते। ठीक है ना? सब करेंगे ना इंशाअल्लाह भाई?